हेलो एवरीवन। तो IBPS PO 2023 के एग्ज़ाम से पहले जो है वो मॉक्स की काफ़ी सीरीज़ और क्वेश्चंस मैं करा रहा हूँ। तो मॉक नंबर टेस्ट ये 3 होगा हमारा, ठीक है। वही है हमारा जो प्रीवियस क्वेश्चन जो हम कर रहे थे, अप्रॉक्स हम कोशिश करेंगे कि उसी की तरह हम लोग रखें, यानी कि इंग्लिश में अपने 15 मार्क्स इंग्लिश में और 20 प्लस मार्क्स यानी कि 20 मार्क्स मान लो मैथ में और 25 to 30 मार्क्स हमारे अगर मैथ्स में आ जाते हैं, रीजनिंग में आ जाते हैं। तो अगर हमारे रीजनिंग में 25 आते हैं, इधर 20 आते हैं, इधर 15 आते हैं, तो हम आराम से 60 का टारगेट लेकर के चल रहे हैं, ठीक है। तो 60 क्वेश्चन सही होने के बाद जो है फिर हम ज़्यादा क्वेश्चन पर फोकस नहीं करेंगे, ये सिर्फ क्वालिफाइंग नेचर का ही है, ठीक है। ये सब है, शुरू कर देते हैं। तो इस बार सबसे पहले पैसेज ही आ गया है। चूज द वर्ड विच इज सिनोनिम ऑफ द वर्ड प्रिंटेड इन बोल्ड। मिली, मिली, मिली का मतलब क्या होगा? नहीं पता मुझे। Which of the following reasons have the real estate developers been dragged to court? ठीक है, तो देखते हैं। तो across the metropolitan area that surrounds New Delhi, a string of real estate developers including Unitech, JP Infra Limited and Bhopali Group Limited have been dragged to court by लेकिन ये रीजन पूछ रहे हैं, by irate homeowners who sold out payments for apartments that have yet to complete. Many of these firms took money from stream buyers as they slumped, and once red hot market cooled their businesses unrevealed, so leaving them grappling with debt. The fallout from the shaking this and market represent cross and markets and broader economy. So Unitech, India's largest developer, has plunged to a fraction of its previous valuation. So United ठीक है। अभी तक हमें हमारी लाइन मिली नहीं, यहाँ पर ही सारी चीज़ें हो रही हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है। डाइवर्जेंट, डिलेड, फेसिंग, कुछ ऐसा कुछ मिला क्या? Small developers who can't comply. Developers चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो हम ज़्यादा टाइम नहीं खा पाएंगे। मैं इस पर बाद में ही आऊँगा, बिल्कुल ही छोड़ देते हैं उसको, ठीक है। क्या कह रहा है सेंटेंस? इट वॉज अ ग्रेट dash to dash the high level meeting between these days. So it was a great honor to witness, it was a great time to participate high level meetings between these days. ठीक है। The hunger for power is dash and therefore most difficult to this. The hunger for power is नहीं, difficult to contain, evolutionary. Power is evolutionary, नहीं। Power is accumulative and therefore most difficult to subdue. तो इसके अलावा कोई फिट बैठ नहीं रहा है। So caffeine, the dash in coffee क्या है? Stimulator
The stimulator in coffee has been called the most widely used psychoactive produce on the earth. Psychoactive compound, the stimulation in coffee. ठीक है. Next, the actor was not not bothered by public criticism and paid no jurisdiction even to the poor review in the media, and paid no was not affected by public criticism and paid no attention even to. ठीक है. Next, our constitutions was based on the belief that the free dash of idea, the free क्या, the free distinction, free reversal, free interchange, free selection of ideas, people and cultures is essential to the concurrence, to the preservation of the democratic society, to the upholding of a democratic society. ये थोड़ा सा ज़्यादा सही लग रहा है. फ्री रिवर्सल्स ऑफ आइडिया. ठीक है. हाँ, देखते हैं. A heat event have serious implications. मेरे क्वेश्चंस जो हैं वो ज़्यादातर गलत ही हो जाते हैं. मेरे को कभी डर लगता है इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने से. आगे बढ़ते हैं हम लोग और कुछ देखते हैं. क्या कह रहा है? We only have people doing this work with the best possible way without changing the yet we have not developed the technology to get machines to do it. ठीक है. ये जो है सेकंड में तो सही फिट हो रहा है. Yet into मुझे लगता है सेकंड और फर्स्ट और सेकंड. Here we only have people doing this work. Here have not developed. ठीक है. ये थोड़ा सा सही. Nevertheless, 3 successive. However, I like the quality of the dress. I like the quality of the dress. However, I only want the color pink while buying shoes. However, the dress comes only in one color. I only want the shoe. तो पहला तो सही है. पहले के साथ आप इसको कंबाइन करोगे, दोनों कंबाइन कर लो. एक मिनट. ये वाला जो था, we only have people doing this work yet and to create नहीं है. ठीक है. Next, the output from Kirkuk falls this week when Iraqi forces. ठीक है. So while the government boosted funds at policy banks to help affected auto parts suppliers, no additional financing was offered to them. It has lost nearly 5% since the Labour Party secured power followed an election, followed by होना चाहिए ना, followed the election last month.
It has lost nearly 5% since the Labour Party secured power following an election last month. Followed an election. Followed the election ही होनी चाहिए. Followed the election last month. Followed के साथ by लगता है. Followed the election last month. ठीक है. Since we are writing about devolution, since we have been writing, है ना? ठीक. Choose the correct alternatives in the case given. Yes, ठीक है. करेक्शन अगर नहीं है तो ठीक है. So night and day her parents minds. Night and day her parents minds. Words count of. ठीक है. For count of. ठीक है. ओके ये हमारे पांचों सही होने चाहिए. अगर ये 5 हैं तो किस्मत से. So starting on a fitness program is one thing and keeping at it is quite another. तो ये तो बिल्कुल ही ठीक लग रहा है. Starting on a fitness program is one thing and keeping at it is keeping at. यहाँ पर क्या कह रहे हैं? ये किसके साथ स्टार्ट हो रहा है? ए सी वाला पढ़ो कि स्टार्टिंग ऑन अ वन थिंग एंड नहीं स्टार्टिंग ऑन अ फिटनेस प्रोग्राम. ठीक है मेरे हिसाब से. विद इंडोर रनिंग वर्चुअल मैराथन स्टार्टेड नहीं, ये नहीं बनेगा. तो काय से स्टार्ट हो रहा है? यहाँ से रख के देख लो आप. देखो बी से ज़्यादा स्टार्ट हो रहा है, ए से ज़्यादा. तो या तो ए या तो बी. अगर ए रखते हैं तो with indoor running virtual marathon started, people ran with indoor running, people ran within the क्या within the confines of their home. यानी कि सी के बाद ई आना चाहिए. ऐसा कोई कॉम्बिनेशन आपको दिखाई दे रहा है? एक तो ये दिखाई दे रहा है सी के बाद ई वाला. तो यहीं से पढ़ो being promoted where virtual marathon. ठीक है ये तो नहीं होगा. ये वाला देख लो जरा. Virtual marathon started with indoor running being promoted where people ran within the. नहीं ये तो मुझे सही नहीं लग रहा. और कौन सा सही लग सकता है? देख तो ए वाला सी को कंबाइन करो जरा. तो विद इंडोर रनिंग नहीं, विद किसके साथ है? कन्फाइन देयर होम्स विद इंडोर रनिंग नहीं. स्टार्टेड वर्चुअल मैराथन से स्टार्टेड. आप बी वाला चेक करो, लास्ट वाला जो था बी सी. तो बी कह रहा है वर्चुअल मैराथन जो है वो स्टार्टेड पीपल रैन विद वर्चुअल मैराथन स्टार्टेड पीपल रैन विद इन द बीइंग प्रमोटेड वेयर. नहीं ये भी गलत हो गया. अभी क्या बचा मेरे पास? being promoted where with the नहीं, फिर यही बच रहा है मेरे पास फिर लास्ट ऑप्शन. so with indoor running people ran within the नहीं ran within the confines of their home. तो सी के साथ ई का कॉम्बिनेशन. तो ये मैं लगाऊँ वर्चुअल मैराथन स्टार्टेड with indoor running and being promoted where people ran. ठीक है खत्म करो इसको. Kumaon in 10 years we visited Garhwal recent years. We visited Garhwal a few times in have to be. ठीक है तो ए से स्टार्ट करेंगे. Kumaon in 10 years recent years नहीं ये गलत हो गया. In 10 years a few times in नहीं. In 10 years have not been to नहीं. ए के साथ भी 10 years. Kumaon in 10 years we visited Garhwal नहीं.
We visited Garhwal a few times in recent years. ये वाला हो सकता है. Few times in recent year, have not recent years, but have not been to mountains. ठीक है. Next. तो ये क्या कह रहा है? ड्यू टू कॉन्टिनेंटल क्लैशेस. इज से तो स्टार्ट होगा, नहीं तो सीडी वाले तो भूल ही जाओ, ए वाली बात करो. ड्यू टू कॉन्टिनेंटल क्लैशेस is becoming difficult कमोमोडर नहीं, छोड़ो इसे. कमोमोडर अमंग फुटबॉलर्स ना, छोड़ो इसको. ए के बाद बी लगाओ. ड्यू टू कॉन्टिनेंटल क्लैशेस कमोमोडर अमंग फुटबॉलर्स is becoming footballers नहीं, is becoming difficult, is increasing strained and ना नहीं. अभी लास्ट बचा है ए बी डी. ए लगाओ. ड्यू टू कॉन्टिनेंटल क्लैशेस among the footballers is increasingly strained and organizing matches is becoming difficult, so that would be the correct option. ठीक है. नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? अच्छा, ए से स्टार्ट करो या बी से स्टार्ट करो या डी से? ठीक है, तो ए से देखते हैं. PFOA pollutes the American and can blood of हटा गया. pollutes the pass from mother to blood of nearby every American and can मदर टू अनबॉर्न चाइल्ड. यानी डी के बाद ई का कॉम्बिनेशन देखो, तो डी के बाद ई का कॉम्बिनेशन यहाँ पर लग रहा है, यही कॉम्बिनेशन होगा. फिर pollutes the blood of nearly every American and can pass from mother to. खत्म. स्विच सेक्शन अभी नहीं करेंगे. स्विच 3 मिनट रह गए. 17 क्वेश्चन हो गए. ज़्यादातर क्वेश्चन सही है हमारे, बट 8 क्वेश्चन ही कुछ नहीं निकला इनमें से, तो क्या कह सकते हैं. इनको देख लेते हैं एक बार. A heat event have serious implications, ठीक है, on public health. It can lead up to fatal heat strokes in a small percentage of people, while much more could encounter exhaustion, cramps and fainting. मुझे नहीं समझ में आ रहा है. एक्चुअली में स्पॉटिंग एरर्स मैं ज़्यादा करता ही नहीं हूँ, इस वजह से वो मेरे को ज़्यादा समझ में नहीं आती. डेसीफेरिंग पैसेज जब भी आएगा ना, मेरी तो हालत ख़राब हो जाती है. चलो खैर, अगला देखते हैं. इंडियाज़ गवर्नमेंट हैज़ स्टेप्ड टू रेगुलेट द रियल एस्टेट इंडस्ट्री विद न्यू लॉज. कहीं है कुछ? हटाओ. अब assumption देख लेते हैं. तो in the question given in the statement followed by assumption, to add to builders' woes, the court seems to be siding with the home buyers. Okay, तो the court were the major support system to builders. ऐसा तो नहीं. Assure that home buyers' interest would be protected. हाँ, ये थोड़ा सा ठीक लग रहा है. Even plummeting prices haven't been able to entice India's home buyers. ठीक है. तो India's real estate market in the grip of down potential नहीं है, तो फिर shunt purchases assumption 2 क्या कह रहे हैं? India has experienced skyrocketing नहीं, maybe. So the 3 successive stages were carefully examined. Nevertheless, all of them have a common foundation, source and purpose. It was easy to see that there was an apparent difference between them. नहीं, कुछ इसमें confusion हो रहा है मेरे को. मतलब ऑलमोस्ट हमने जितना कर सकते थे ना उतना हो गया.
18 किए हैं, इसमें से बस यही ठीक हो जाए तो भी ठीक है। सब इसको सबमिट कर देते हैं हम लोग, और अब हम लोग मैथ पर स्विच कर गए। यहाँ पर क्या कह रहे हैं, टोटल पार्टिसिपेंट दे रखे हैं, बॉय पार्टिसिपेंट्स हैं और गर्ल्स के पार्टिसिपेंट्स हैं। ठीक है, तो इसको बना लेते हैं चार्ट टाइप से, तो थोड़ा सा ज़्यादा आसान हो जाएगा, है ना। फुटबॉल, क्रिकेट, बास्केटबॉल, कबड्डी, टेनिस। 20, 10, 30 यानी कि पहला 75 है, दूसरा है 90, फिर है 80, फिर है 55 और फिर है 60। क्या कह रहे हैं, 60% बॉय पार्टिसिपेटेड इन टेनिस आउट ऑफ टोटल पार्टिसिपेंट्स, टोटल पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, तो ये कितना हो जाएंगे, 10 का 0 लगा 1, 9, 1, 10, 7, 17, 18, 20, 25, 24, 25, 1 मिनट, 10 का 0 लगा 1 और 9, 1, 10, 10, 6, 5, 11, 10 और 11, 21, 21 और 15, 360 हो गए। इसमें से अगर 60% जो बॉयज़ हैं, 36 का 6 यानी कि 216, 216 मतलब 216 जो बॉयज़ हैं टेनिस आउट ऑफ टोटल पार्टिसिपेंट्स, 60% बॉयज़ पार्टिसिपेंट टेनिस आउट ऑफ टोटल। हाउ कैन इट बी पॉसिबल, if 60% boys participated in tennis out of total participants and girls participate in another event named swimming is twice the number of girls participating in tennis. If 60% participated in tennis out of total participants, लेकिन टेनिस के ही टोटल पार्टिसिपेंट की तो नहीं बात कर रहा है केवल, 60 का 60% यानी कि हो गया 36 बॉयज़ गर्ल्स। ठीक है, तो ये 24 हो जाएगा। टोटल पार्टिसिपेंट गर्ल्स पार्टिसिपेंट्स इन अनदर इवेंट नेम्ड स्विमिंग इज थ्राइस द नंबर ऑफ गर्ल पार्टिसिपेंट इन टेनिस। स्विमिंग भी दे रखा है इन्होंने, सब कुछ इसी में भर दो। स्विमिंग में कितना दे रखा है, थ्राइस द नंबर ऑफ गर्ल्स पार्टिसिपेंट इन टेनिस। ठीक है, तो थ्राइस करूँ, 3 लगाए 3 6 7 72 हो गए। In tennis and boys participant in swimming is 25% more than that of boys participant in tennis, तो इसका 25% मोर हो जाएगा, 45 यानी कि 45 हो गए। देन फाइंड द टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट स्विमिंग, यानी कि ये हो जाएगा 7, 4, 11, 117 इज द करेक्ट आंसर। फाइंड द डिफरेंस ऑफ एवरेज नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट फ्रॉम फुटबॉल एंड कबड्डी। फुटबॉल एंड कबड्डी 10 का 0 हासिल लगाए, 12 और 13, 2 65 आ गया। ठीक है, एंड क्रिकेट एंड बास्केटबॉल टुगेदर यानी कि 170, 200 काटो 16, 85, इनका डिफरेंस निकालोगे तो 20। टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स फ्रॉम फुटबॉल एंड क्रिकेट टुगेदर, ठीक है, 916 इज टुगेदर इज हाउ मच परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट फ्रॉम बास्केटबॉल एंड कबड्डी। ये हो जाएगा 5, 8, 5, 13, इसका कितना परसेंट हो जाएगा ये, तो ये लगभग होगा 5 दिन 10, 5 7 35, 5 3 15, 5 3 15, ये 33 तो हो गया। 27 से काटो, 27 एकम 27, तो कितना बचा, 13 में से 7 जाएंगे 6, 7, फिर 27, फिर 2 बार में चला जाएगा, 1 2 करके आ रहा है। नेक्स्ट 20% पार्टिसिपेंट फ्रॉम फुटबॉल, ठीक है, हटाओ क्वेश्चन। 10% पार्टिसिपेंट फ्रॉम क्रिकेट, 10% participant from cricket and 5% participant from basketball। अच्छा, ठीक है,
have disqualified, then find the ratio of disqualified participants from क्रिकेट एंड ये 9 और 4 का रेशियो हो जाएगा। ओके नेक्स्ट, अभी हमारे लगभग 16 क्वेश्चन और रह गए। 3 दूनी 6, माइनस प्लस का हो जाएगा प्लस प्लस, प्लस माइनस का हो जाएगा माइनस प्लस, 3 दूनी 6, 6 एक कम 6 करो, और ये कितना हो जाएगा 8 से मल्टीप्लाई कर दो सीधे, 8 6 48 और 8 एकम 8, नीचे क्या हो जाएगा ये 24 पंजे, 2 दूनी 4 दूनी 8 3 24, जो घटाने पर 26 आना चाहिए, 15 दूनी 30 चौके कर लो, ठीक है। तो ये बड़ा हो गया, ये बड़ा हो गया, x बड़ा हो गया y से, दोनों के साथ, ठीक है। x की पावर 4, तो x बराबर प्लस माइनस का 16 आ जाएगा, ठीक है। और ये कितना आ जाएगा, 1 मिनट, 16 कैसे आएगा, ये यानी कि 3 का हो सकता है, 2 4 ठीक है। और क्या बच रहा है यहाँ पर 25, 42, यानी कि ये 62 का है, तो प्लस माइनस 62 यहाँ हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा प्लस माइनस का माइनस प्लस हो जाएगा, मेरे हिसाब से तो कोई रिलेशन इसमें नहीं है। तो माइनस प्लस का ये प्लस प्लस हो गया, माइनस प्लस का ये प्लस प्लस हो गया, 208 के फैक्टर कर लो, 2 0 4 फिर 8 1 से 4 2 2 2, तो जोड़ने पे 29 आना चाहिए, तो 4 दूनी 8 दूनी 16, 16 13 फैक्टर इसके हो गए, और 272 2 1 2 2 6 2 12 2 16 2 3 6 2 4 8 और 17 दूनी 34, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, यानी कि 17 और 16 जो है वो इसके फैक्टर होने चाहिए, तो y बड़ा बराबर x। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्या कह रहे हैं, प्लस प्लस हो जाएगा, प्लस प्लस का क्या हो जाएगा माइनस माइनस हो जाएगा, दोनों केस में x बड़ा होगा y से। नेक्स्ट बात करते हैं, तो प्लस प्लस का माइनस माइनस, इस प्लस प्लस का भी हो जाएगा माइनस माइनस, ठीक है। 16 छक 96 हो जाएगा, तो 96 के ऐसे फैक्टर के जोड़ने पे 20 आए, 12 8 96, ठीक है। और ये तो माइनस माइनस रहना ही है, और 24 240 के ऐसे फैक्टर की 4 0 जोड़ने को 38 आए, तो 5 3 15 30 30 अट्ठे भी हो सकता है, 30 अट्ठे हो गया, ठीक है। अभी क्या है नीचे 16 से गुणा कर दिया, 16 3 48 400 से 16 अट्ठे 128, ठीक है। ऊपर 10 से मल्टीप्लाई तो 120 और 80, तो 120 इससे बड़ा हो गया, 80 इधर बड़ा हो गया, मतलब नो रिलेशन कैन बी एस्टेब्लिश। ओके, यहाँ पर बात करते हैं, तो 12 इधर आके प्लस हो जाएगा, 12 पंजे 60, 60 के ऐसे फैक्टर करो कि 60 के 15 चौका 60 हो सकता है, और ये माइनस प्लस का प्लस प्लस बनेगा, ये भी प्लस प्लस बनेगा, और इसमें क्या बन रहा है 3 पंजे 15, 3 पंजे 15 एकम 15, ठीक है। ऊपर 3 से 15 3 45 और 4 3 12, नीचे 5 से 15 15 पंजे 75 और 5, ये 75 बड़ा हो गया, 45 बड़ा हो गया, नो रिलेशन कैन बी एस्टैब्लिश। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको छोड़ो इसको छोड़ो, एक मिनट, ये क्वेश्चन बढ़िया दे रखा था, बाद में देखते हैं। अच्छा ये कर ले सकते हैं, ये कर लेते हैं, ये 160 बटे 8 हो जाएगा, 8 3 16 20 प्लस का ये 10 पंजे 50 और ये मिला के 70 हो जाएगा, x प्लस 225 बटे में 3 हो जाएगा, 3 से काटो तो 3 7 21, 3 पंजे 15, 75 में से 28 घटाओगे तो कितना बचेगा, 15 में से 8 जाएंगे तो 7 बचेगा, और 6 में से 2 जाएंगे तो 4 बचेगा, 10 में के साथ जाएंगे 3 बचेगा, 3 आ रहा है किसी के लास्ट में पूरा, ये कितना हो जाएगा 56 5 5 31 3 5 25 26 27 28, इसमें 26 जोड़ दो 6, 10 का 0 है 306 हो गया, इसमें 42 भी जोड़ दो 348 हो गया, और बराबर में क्या है x² प्लस
ये 16 और 4 ये हो जाएंगे 20, 20 घटाओगे 328 बचेंगे, और 324 तो 18 का होता है, तो ये 18 के आसपास ये हो जाएगा 970/100 गुणा में 20, यानी कि ये 7 दूनी 14 4 1 9 दूनी 18 1 19 194 माइनस 360, यानी कि 36 की 5 से गुणा करो, 6 पंजे 30 0 3 और 5 3 15 16 17 18, ये 4 एक बचा कितना 14, और x माइनस ये कितना बचा 240, यानी कि 24 गुणा 4, 4 चौक 16 का 6, यहाँ से लगा 1, 4 दूनी 8 और 1 9 10 का 0, यहाँ से लगा 1 9 10 और 1 11, 110। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये कितना हो जाएगा 64 का 525। ठीक है, तो 64/100 इंटू 525, 25 दूनी 50, 25 एकम 25 चौका 100, 4 से काटोगे तो 16, 16 एकम 16 6 1, 16 दूनी 32 और 1 33, ये कितना बचा 119/7, 7 से काटोगे तो 17 तो 119, 17 आ गया, 17 जोड़ दो 13 का 3 1 3 4 ये हो गया 5 353 प्लस 8 जोड़ो 11 1 हाथ से लगा 1 361 हो गया, और में x प्लस 3 से काटो 3 से 3 1 3 5 15 15 हो जाएगा, 15 घटा दो इसमें से 11 में से 5 गया, ये 6 बच रहा है, 346 होना करेक्ट। नेक्स्ट ये कितना हो जाएगा 85 इंटू 12, 12 पंजे 60 0 6 12 8 96 और 6 102। ठीक है, प्लस का ये हो जाएगा 64 का मतलब 8 हो गया, और 8 धाम ये हो जाएगा 80, यानी कि हो गया 1100 बराबर में रूट एक्स, और उधर कितना है 100 घटा दो तो 11 का स्क्वायर 121 हो जाएगा। ओके, तो अभी हमारे पास क्वेश्चन तो बचे हुए हैं, कितने क्वेश्चन हो गए हमारे 15 क्वेश्चन हुए, अभी और क्वेश्चन निपटा लेते हैं। In an exam there are 3 subjects in which there is each subject pass at least one or more subjects। ठीक है, मैं इसको बाद में करूँगा, छोड़ दें। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन है, A and B alone can do a work in 24 days और B करता है 32 डेज में, इनके फैक्टर कितने हो जाएंगे? तो 12 दूनी 24, 4 16 50 से लगाए, और 4 दूनी 8 96 सही है ना, 3 बार, हाँ 96 सही है। तो 96 दे वर्क टुगेदर हाउएवर 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ वर्क वी लेफ्ट, तो 24 से काटो तो 4 बार में, इसका 3 बार में, 3 दिन पहले जो है बी छोड़ के चला गया, तो 3 दिन का काम कितना हो जाएगा 3 3 9 9 15 5 से लगाइए, ये 105। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज द वर्क विल बी कंप्लीटेड, 7 7 1 7 7 5 35, 15 दिन इसका करेक्ट है। ये वाला छोड़ते हैं, हाँ ये वाला क्वेश्चन ट्राई कर सकते हैं। रेशियो ऑफ मंथली इनकम, एक मिनट आगे क्या है हमारे पास, अच्छा आगे डी आई कर लो, 5 मिनट है हमारे पास, तो डी आई हो जाएगी। इफ़ शाओमी वॉज, ये क्या दे रखा है पाई चार्ट में 30%, ठीक है। इफ शाओमी वॉज एबल टू सेल अ टोटल ऑफ 14.30 lakhs स्मार्टफोन्स इन 2019, तो यानी कि 26% की जो वैल्यू है वो 14.30 है। देन हाउ मेनी स्मार्टफोन्स रियलमी हैड सोल्ड, तो 16% की वैल्यू निकाल लो, 2 थे 16 2 कम है 2 3 6 पॉइंट हटाओ नीचे काट दो, 13 1 कम 13 13 1 कम 13 11 88 8.8 lakhs। नेक्स्ट क्वेश्चन, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया imposes a total fine of 1975 करोड़ on all companies having smartphones market share more than 15%, तो 15% से ऊपर वाली कौन कौन सी है, 1 2 3 4, ठीक है। Violation of fact, if the fine is imposed according to ratio of their market share, then how much amount is to be filled by Vivo, तो Vivo का 17% है, यानी कि टोटल दे रखा है तो 20 30 40 50 60
दो मिल जाएगा 20, 16, 26, 17, 6, 6, 12, 7, 19 का 9 ऐसे लगा 1 हो गया, 2, 4, 5, 6, 7 इंटू वीवो का बताना है। तो ये कितने से कट जाएगा लगभग 18, 14, 15, ये 2 बार में कटा, ठीक है। तो 158 हो गया, 17 में से 8 जाएंगे तो 8 जाएंगे तो 7, 5, 9 बचेगा, 8 में 395, तो 7 पंजे 35 यानी कि लगभग 5 बार में जाएगा। 17 पंजे 85 को 5, लास्ट में 5 किसके आ रहा है, 2 आ रहा है, मतलब 8, 34, 35, 36, 42, तो 42, 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, if Realme plans to transfer 15% of their users to Oppo, Realme plans to, ठीक है, users to Oppo in the next year, then what will be the smartphone market share of Oppo in the next year? अरे अगर इसमें से 15% इसमें ट्रांसफर कर दो तो ये 8 और 15 मिलके 23% हो जाएगा। If total section include Apple, OnePlus, Nokia having market, Apple 6, OnePlus 3, Nokia 4, if respectively. If Samsung buy Nokia in the next year, Samsung ने बाय किया Nokia को नेक्स्ट ईयर के लिए, ठीक है, तो Samsung हो गया 24%, ठीक है, नेक्स्ट ईयर Samsung हो गया 24%, देन व्हाट परसेंटेज ऑफ मार्केट शेयर ऑफ Samsung will increase next year? 24%. What is the central angle of Xiaomi section? Xiaomi का ये रहा 26%, तो 360 डिग्री बराबर हो जाए 100%। Xiaomi का निकालना है, 36 किसमें आ रहा है, तो ये हमारे क्वेश्चन ये वाला तो होगा सारे 21 क्वेश्चन हो गए, 21 लेके चला था यहाँ से, और अब मैं कुछ और देखता हूँ यहाँ पर। If 56% ऑफ टोटल पॉपुलेशन आर इलिटरेट, यानी कि 100 में से 56 जो है वो इलिटरेट है, तो 44 जो है वो लिटरेट हो जाएगी, 90, 100। द रेशियो ऑफ लिटरेट मेल टू फीमेल, इसमें जो मेल टू फीमेल है वो 4:7 दे रखे हैं, और लिटरेट, ठीक है, तो यानी कि 4-3 दे रखे हैं, 7 की वैल्यू 56, ठीक है। रेशियो एंड रेशियो ऑफ इलिटरेट मेल टू फीमेल, जो इलिटरेट मेल टू फीमेल दे रखा है वो कितना दे रखा है, 8:32 और 8:24, ये कितना दे रखा है 6:5, 11:44, 4, 6:24, 5:20। द नंबर ऑफ इलिटरेट मेल इन विलेज, व्हाट परसेंटेज ऑफ लिटरेट मेल इन द विलेज, 6:24, 8:24, 8:34, 32, 4 से बड़े 25, 25%। P started a business investment this and P invested his capital for X month, ठीक है, तो 30,000 और 45,000 invested X month, and Q invested his capital for the entire period. At the end of the year P share was कितना हो जाएगा 12,500 आउट ऑफ टोटल प्रॉफिट 37500, ठीक है। यानी कि इसका 25,000 हो जाएगा, ठीक है। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, अच्छा एक्स की वैल्यू निकाल ली है, तो ये कितना हो जाएगा 30x बटे 45 गुना 12 बराबर में 125 बटे 925, 125, 25, 5, 6, 200, 55, 5 गुने 10, 1 बटे 2, 5, 35, 5, 45, 6 गुने 12,
2 से 2 कटो 9 आ जाएगा। तेरह तेरह इज द रेशियो ऑफ ए एंड बी रिस्पेक्टिवली एंड 15 16 इज द रेशियो ऑफ ए एज आफ्टर 6.9। चलो 23 क्वेश्चन इसमें हो गए हैं। ये क्वेश्चन वैसे देखो टाइम का प्रॉब्लम है ना, होने को तो हो जाएगा, मेन प्रॉब्लम टाइम का है। रीजनिंग सेक्शन आने वाला है, बी प्रिपेयर्ड। तो बनाना शुरू कर सकते हैं यहाँ से तो, क्योंकि आपको करना ही करना है। 8% आर सिटिंग अराउंड द स्क्वायर टेबल, 4 ऑफ देम आर सिटिंग एट द कॉर्नर्स फेसिंग। अच्छा 8 स्क्वायर टेबल, स्क्वायर टेबल 4 लोग कॉर्नर पे बैठे हैं और 4 लोग मिड में बैठे हैं। ठीक है, मैं 2 पॉसिबिलिटी बना के चल रहा हूँ पहले से ही। कॉर्नर्स फेसिंग आउटसाइड, ठीक है, कॉर्नर फेसिंग आउटसाइड, दीज पीपल फेसिंग इनसाइड। ठीक है, 1 पर्सन सिट बिटवीन एस एंड एम, एम डज नॉट सिट एट द कॉर्नर, तो एम मिड पे बैठा है, तो 1 पर्सन एम और किसके बीच में कह रहे हैं, एक मिनट, 1 पर्सन एम और एस, तो एम और एस, एम और एस, ठीक है, एम, ठीक है, वी एंड कॉर्नर एंड इज नॉट अ नेबर ऑफ वी, यानी कि वी यहाँ नहीं आएगा, वी यहाँ नहीं आएगा, वी यहाँ नहीं आएगा, वी यहाँ नहीं आएगा। ठीक है, 2 पर्सन सिट बिटवीन वी और एस, तो 2 लोग छोड़ के वी यहाँ आ जाएगा, यहाँ नहीं आ सकता, अब 2 लोग छोड़ के वी वहाँ जा नहीं सकता, वी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, टी सिट सेकंड टू द राइट ऑफ वी, तो टी यहाँ आ जाएगा। ठीक है, तो टी यहाँ आ जाएगा। 2 पर्सन सिट बिटवीन क्यू टी, तो 2 लोग छोड़ के टी यहाँ नहीं आ सकता, 2 लोग छोड़ के यहाँ आ सकता है क्यू टी। क्यू और टी के बीच में 2 लोग, तो 2 लोग और क्यू, 2 लोग और क्यू। ठीक है, 1 पर्सन सिट बिटवीन क्यू एफ, क्यू एफ, क्यू एफ, क्यू एफ। ठीक है, एस इज नॉट अ नेबर ऑफ एन, एस इज नॉट अ नेबर ऑफ एन, एस इज नॉट अ नेबर ऑफ एन। ठीक है, आर सिट थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एफ, एफ के लेफ्ट में, पहला दूसरा तीसरा। ठीक है, हु इज नॉट, ठीक है, पहले हमारी 1 हो चुकी है। हु सिट सेकंड टू द राइट ऑफ आर, तो आर के राइट में सेकंड पर हमारा है एन, फटाफट कर लो इसको। हु अमंग द फॉलोइंग सिट नियर एन, क्यू और एम दोनों ही बैठे हुए हैं। हाउ मेनी पीपल, हाउ मेनी अल्फाबेट्स आर देयर इन द इंग्लिश डिक्शनरी बिटवीन एफ एंड द वन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ एम और आर के बीच में, तो आर का 18 है, एफ का 6 है, यानी कि 12, 6 एफ जी एच आई जे के एल एम एन ओ पी क्यू आर, 12 ही आ रहे हैं। ठीक है, how many alphabets are there between J K L M N O P 11 आ रहे हैं ना। ठीक है, whom the following sit opposite to T, T के opposite में N बैठा हुआ है। 4 of the following, ठीक है, F V F Q S M कॉर्नर पे हैं, R जो है अच्छा वो उसमें है। ठीक है, नेक्स्ट 5 क्वेश्चंस क्या कह रहे हैं, व्हाट इज द कोड फॉर गैदर एंड गैदर वाइट कैपिटल, तो यहाँ से क्या करेंगे, सैलेड हाफ हार्म लेदर डिक्लेयर कैपिटल पार्क सैलेड, तो यहाँ से सैलेड का कोड आ जाएगा, सैलेड का कोड क्या आ जाएगा, OH। ठीक है, इसको थर्ड वाले में मिलाओ, हार्म डिक्लेयर गैदर लेटर, तो यहाँ से मिलेगा हमें हार्म और LATER लेटर, इसका कोड क्या क्या हो जाएगा, CO और WV दोनों में ऑब्लिक लग के आ जाएगा, तो हाफ का कोड बचा, तो हाफ का कोड क्या बचा, हाफ का कोड तो फिर बचा CO नहीं OE, हाफ का कोड हो गया OE। ठीक है, और क्या क्या रह गया, हाफ डिक्लेयर गैदर, ठीक है, इसको यहाँ से मिला दो, इसमें लेदर है और कुछ कॉमन है, सैलेड हाफ हार्मर लेदर। ठीक है, तो लेदर का कोड क्या हो जाएगा यहाँ पर, CO इसका कोड हो जाएगा, तो हार्म का कोड WB हो जाएगा। अभी क्या कह रहे हैं, गैदर वाइट कैपिटल, कैपिटल यहाँ रहा, इन दोनों में मिला दो तो डिक्लेयर का कोड निकलेगा, डिक्लेयर का कोड कितना हो जाएगा, इनमें क्या कॉमन है, VE ही कॉमन है, VE गया यहाँ से, VE गया, OH गया। ठीक है, अब IE तो निकलेगा नहीं, क्या बच रहा है, हार्म और डिक्लेयर निकल गया, यानी कि VE और CO निकल गया। एक मिनट,
हार्म का कोड डब्ल्यू भी निकल गया, और लेदर का कोड सी ओ भी निकल गया। वी जो है वो डिक्लेयर का कोड है, वो भी निकल गया। बचा डबल ई, यानी कि गेदर का कोड हो जाएगा डबल ई। ये थोड़ा सा डिफिकल्ट पड़ रहा है, पता नहीं क्यों। डबल ई। अभी क्या बचा, वाइट। वाइट इसमें है क्या, वाइट इसमें है नहीं, तो कोड नया होगा कोई। बी एच ले लो, ठीक है। कैपिटल इसमें है क्या, कैपिटल है, लेकिन कैपिटल का कोड क्या है, एफ ई नहीं है, एफ ई डबल ई नहीं, आई ई। कैपिटल का कोड हो जाएगा आई ई, क्योंकि आई ई कहीं और नहीं है, कैपिटल भी कहीं और नहीं है, ठीक है। अब हमारे क्वेश्चन जल्दी से होते चले जाएंगे। टास्क सेलेक्ट डिक्लेयर, ठीक है। टास्क सेलेक्ट डिक्लेयर को क्या लिख रहे हैं ये लोग, ओ एच वी ई, ठीक है। तो टास्क का कोड जो है वो ए ई हो गया। तो कैलकुलेट का कोड क्या होगा, ये रहा कैलकुलेट। कैलकुलेट का कोड क्या होगा, एफ ई हो सकता है, ए ई तो है नहीं, और वाई ई, सी ओ भी नहीं है, ए ई और वाई। अच्छा, एफ ई और वाई ई में देखो, एफ ई ऊपर दे रखा है तो पार्क का कोड हो गया वो, तो बचा क्या, वाई ई। पार्क का हो जाएगा एफ ई। ओ ई किसका कोड है, हाफ का कोड है। लेटर गेन, हार्म का कोड ये दे रखा है, कोड फॉर गेन। तो लेटर का कोड जो है वो हमने क्या निकाला था, अच्छा हार्म का तो हमने निकाल ही लिया है, हार्म का हो जाएगा कोड डब्ल्यू बी, तो डब्ल्यू बी हटाओ। सी ओ टी ई बचा, यानी कि लेदर गेन सी ओ टी ई, तो लेदर यहाँ है सी ओ, लेदर का कोड क्या हो गया, सी ओ, तो बचा क्या, टी। नेक्स्ट। हाँ, 13 मिनट रह गए हैं और हमारा ऑलरेडी टाइम जो है निकल गया है। 30 number of people are sitting in a straight line facing the south direction. M से third to the left of N. पहला दूसरा, M से third to the left of N. 4 people are sitting between Y and N. ठीक है, 4 people sitting in Y and N. Y sit fifth from an end. 1 2 3 4 5. 1 2 3 4 5. ठीक है। 6 people sitting between Z and Y. 1 2 3 4 5 6 Z, 1 2 3 4 5 6 Z, ठीक है। Z से थर्ड फ्रॉम एन एंड, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। 2 people are sitting between R and Z. 1 2 R, 1 2 R, ठीक है। मोर देन 1 person sit between M and R, ठीक है। हमारा ये बन चुका है। हाउ मेनी पीपल इन दिस अरेंजमेंट, 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 लोग जो हैं वो यहाँ पर हैं। व्हाट इज द इमीडिएट नेबर ऑफ जेड, का इमीडिएट नेबर है एम। इफ डब्ल्यू इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर, डब्ल्यू इज एन इमीडिएट नेबर ऑफ आर, देन हाउ मेनी पर्सन सिट बिटवीन वाई और आर के बीच में, वाई और डब्ल्यू के बीच में 2 लोग। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ एन, एन की पोजीशन क्या है, थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ वाई नहीं, इमीडिएट राइट ऑफ आर नहीं, फिफ्थ फ्रॉम एन एंड, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, ये सही है, फिफ्थ फ्रॉम एन एंड। फाइंड द करेक्ट वन, नो वन सिट टू द लेफ्ट ऑफ एम नहीं, 2 पर्सन सिट बिटवीन आर जेड, ये सही है। ओके, नेक्स्ट यहाँ पर क्या कह रहे हैं, एक्स ओपन है एच के लिए और दोनों बराबर भी हैं, तो ए तक सही है, बिल्कुल सही है, दोनों बातें सही है, इधर और लगाओ, खत्म करो बात को, ठीक है। यहाँ देखते हैं डब्ल्यू ओपन है एक्स के लिए, तो एक्स ओपन है डब्ल्यू के लिए, एक्स ओपन है टी के लिए, टी ओपन है, पहला बिल्कुल सही है। फिर ई ओपन है जेड के लिए, तो ई क्लोज हो गया, ई किसी के लिए ओपन नहीं है। नेक्स्ट, ऑल क्वेश्चंस आर query, only a few query are solution, no solution is answer, some queries are not solution, some questions are not answered, some questions are not answered, मतलब only first one. all mouse कीबोर्ड, only a few कीबोर्ड जो है वो मॉनिटर,
ठीक है। ऑल मॉनिटर जो है वो CPU, सम नो माउस, सम माउस आर मॉनिटर, सम माउस आर मॉनिटर, नो माउस आर मॉनिटर, इधर और का केस बनेगा, खत्म हो जाएगी बात। ओनली फ्यू कट कॉपी, सम कॉपी आर नॉट पेस्ट, ऑल पेस्ट जो है एडिट है, सम एडिट आर नॉट कॉपी, सम कट कैन बी एडिट, सम कट जो है वो कैन बी एडिट, ओनली सेकंड कंक्लूजन फॉलो। फिर क्या कह रहे हैं, सारे लेफ्ट जो है वो राइट है, कुछ लेफ्ट ये जो है वो छोड़ो, में बोलना भी नहीं आ रहा है। नो कह रहे हैं जस्टिफाई, सम राइट आर नॉट जस्टिफाई, सम राइट जो है आर नॉट जस्टिफाई सही है, सम लेफ्ट आर सेंटर गलत हो गया, ओनली फर्स्ट फॉलो। ठीक है। अच्छा यहाँ पर एक और आ चुका है ये क्वेश्चन, हम लोग टारगेट से कितना पीछे, 21 क्वेश्चन है। वी हैव सफिशिएंट टाइम, तो क्या हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। 8 लोग हैं, लिव इन 8 डिफरेंट सिटीज, ठीक है, बट नॉट दे वर्क एज ए टीचर इन दिस, ठीक है। तो आप एक काम करो, इनको बना लो, PQRYZMNT, 8 डिफरेंट सिटीज हैं, यहाँ सिटी हो जाएगी, एंड दैट इज दे वर्क, यहाँ प्रोफेशन हो जाएगा। ठीक है। अभी क्या कह रहे हैं, आर लिव इन केरला, वाई इज एन एडिटर, तो वाई इज एन एडिटर इन भोपाल, ठीक है। जेड लिव ईदर इन कोलकाता और चेन्नई, जेड जो है या तो कोलकाता या चेन्नई। एन इज अ टीचर एंड डज नॉट लिव इन गोवा, मतलब यहाँ पर गोवा नहीं आएगा, ठीक है। द वन हु इज अ डांसर लिव दिल्ली, तो ये हो गया डांसर दिल्ली के लिए, ठीक है। पी लिव इन नीदर दिल्ली नॉर गोवा, पी ना तो दिल्ली यहाँ आएगा ना गोवा यहाँ आएगा, ठीक है। टी इज अ शेफ, टी जो है वो शेफ है, ठीक है। द वन हु वर्क्स एज अ बैंकर लिव इन चेन्नई, तो बैंकर चेन्नई। द वन हु इज अ पेंटर लिव इन नीदर कोलकाता नॉर, अच्छा एक मिनट, ये क्या है, पेंटर जो है वो कहाँ से नहीं है, केरला से भी नहीं है और कोलकाता से भी नहीं, मतलब ये पेंटर नहीं आएगा, ठीक है। क्यू इज क्यू हु इज अ सिंगर, क्यू जो है वो कौन है, वो सिंगर है, वर्क्स इन पुणे, ये पुणे में काम करता है। फॉलोइंग स्टेटमेंट्स टू विद रिस्पेक्ट टू द अरेंजमेंट, देखते हैं। पी हु इज पेंटर लिव इन बिहार, कुछ बोला नहीं है। नीदर टी नॉर एन लिव इन गोवा, जेड लिव इन कोलकाता, ऑल आर ट्रू। अगर ये सारे सही हैं तो इसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन बना सकते हैं। एक मिनट, गोवा वहाँ नहीं आएगा, गोवा यहाँ नहीं आएगा, तो गोवा 2 जगह आ सकता है ना, लेकिन बैंकर चेन्नई आप कहाँ डालोगे, और डांस और दिल्ली कहाँ डालोगे, दिल्ली वहाँ जाएगा नहीं, तो ये आ जाएगा दिल्ली, ये आ जाएगा डांस, ठीक है। तो बैंकर चेन्नई यहाँ आ जाएगा, बैंकर, एक मिनट, चेन्नई, बैंकर, तो ये कोलकाता रह जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर पेंटर नहीं आएगा, पेंटर यहाँ से नहीं है, और पेंटर कोलकाता से भी नहीं है, तो पेंटर यहाँ भी नहीं आएगा। पेंटर 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 कहाँ जाएगा, पेंटर के 2 प्रोफेशन गए। बैंकर चेन्नई, एक मिनट, कुछ गड़बड़ कर गए क्या हम लोग, बैंकर जो है वो चेन्नई से है और डांसर जो है वो दिल्ली से, तो दिल्ली यहाँ नहीं आएगा, तो दिल्ली और डांसर तो यहाँ आ गया, ठीक है। अभी क्या बचा हमारे पास, दिल्ली वहाँ नहीं जा रहा था, दिल्ली और डांसर यहाँ आ गया। अभी मेरे पास बचा बैंकर और चेन्नई, इनके लिए मेरे पास जगह नहीं थी, तो मैं इसको चेन्नई दे दूँ ना, चेन्नई, ये बैंकर हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसा कुछ बोला थोड़ी, पी जो है वो ये नहीं है वो नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पेंटर आ जाएगा, सारे ट्रू हैं। पी जो है वो पेंटर है और बिहार में रह रहा है, इसी के अकॉर्डिंग बना रहा हूँ। टी और ये दोनों गोवा में नहीं रह रहे हैं, जेड लिव इन कोलकाता और आर ट्रू। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स विद रिस्पेक्ट टू जेड के रिस्पेक्ट में,
तो जेड हु इज़ नॉट अ बैंकर, कौन सा गलत है, ठीक है, हु इज़ नॉट अ बैंकर, ठीक है, डज नॉट लिव इन कोलकाता, ये सही है। जेड इज़ नीदर पेंटर नॉर राइटर, ये भी सही है। जेड लिव्स इन चेन्नई, तो ये वाली बात जो है वो गलत है, तो ओनली थर्ड स्टेटमेंट इज फॉल्स। Which of the following combination is true with respect to the writer? तो आर केरला और राइटर, ठीक है, पी बिहार राइटर गलत हो गया, एम कोलकाता राइटर गलत हो गया, यही सही है, ठीक है। नेक्स्ट ये कह रहे हैं फोर ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, एम जो है वो दिल्ली से है, बिल्कुल सही है। टी कोलकाता से है, टी जो है वो कोलकाता से है, बिल्कुल सही है। जेड जो है वो चेन्नई से है, पी बिहार से है, आर केरला से, मतलब टी जो है वो कोलकाता से नहीं, ये चीज़ है। द फॉलोइंग इज अ डांसर, अब ये डांसर कौन है, डांसर कौन है, एम डांसर है, ठीक है, जेड नहीं हो सकता। ये देखो यहाँ मेरे को ना थोड़ा कंफ्यूजन यहाँ हो रहा है, लेकिन मुझे पता है कि ये पजल जो है वो मुझे नेगेटिव मार्क्स दे के नहीं जाएगी। 3 जनरेशन की फैमिली दे रखी है, 3 जनरेशन कंसिस्ट ऑफ 9 मेंबर्स दे रखे हैं। डी इज द सिस्टर ऑफ एच, बी इज द मदर ऑफ जी, बी इज द मदर ऑफ जी, ए हैज़ 1 sibling, A has 1 sibling, J is the grandfather of G, so J is the grandfather of G. Each parent has maximum 2 children, हर एक पेरेंट्स के पास मैक्सिमम 2 ही बच्चे हैं, ठीक है। आगे क्या कह रहे हैं, F is the father of H, F is the father of H, A is the father-in-law of B, so A is the father-in-law of B, ठीक है। C is the sibling of G, C is the sibling of G, number of females is more than number of males required, ठीक है। अभी हम इस चीज़ को कहाँ जोड़ें, how is F related to B, A का एक सिबलिंग है, वो कौन हो सकता है, वो F हो सकता है, how is 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक पर्सन बचा कौन सा, जी एच, एच बचा ना, एच हो गया, जे रह गया, जे भी हो गया, जी हो गया, ए बी सी डी ई, ई रह गया। हाउ इज एफ रिलेटेड टू बी, एफ जो है वो मैटरनल अंकल है बी का, पैटर्नल अंकल, पैटर्नल है ऑप्शन, पैटर्नल अंकल नहीं है तो ठीक है। एक मिनट क्या कर रहा हूँ, इफ एन इज द हस्बैंड ऑफ जी, एन इज द हस्बैंड ऑफ G, then what is the relation of N with respect to E? N का रिलेशन क्या है E से, तो ये हो जाएगा आपका सन इन लॉ, ठीक है। Which of the following is true, और ये रिगार्डिंग टू अरेंजमेंट, ठीक है। F is the father in law of D, D का फादर इन लॉ, ये ही गलत है। D and H are sisters, ये कह नहीं सकते, हाँ ठीक है, only 5 फीमेल, ठीक है। अभी हमारे पास 2 मिनट रह गए हैं और 29 क्वेश्चंस, हम लोग ये कर सकते हैं क्या, फटाफट से स्पीड बढ़ाओ। 5 बॉक्स डिफरेंट वेज प्लेस इन वन अनदर, ठीक है। W is placed 2 places above the 23 बॉक्स, 23 बॉक्स, इससे 2 प्लेसेस अबव जो है वो W रखा गया है। 2 बॉक्सेस आर प्लेस्ड बिटवीन 23 एंड G, तो 23 और G के बीच में 2 बॉक्स रखे हुए हैं, और 23 और कितने, 5 ही तो हैं, 3 4 5, ठीक है, 2 बॉक्स रखे हुए हैं। और द बॉक्स प्लेस्ड इमीडिएटली अबव जी इज 9 किलोग्राम हैवियर देन द बॉक्स प्लेस्ड एट द बॉटम, तो जी के ऊपर जो रखा गया 9 यानी कि 31, 9 जोड़ो 9 3 12 32, ठीक है, एट द बॉटम, बॉटम, ठीक है। एस इज प्लेस्ड अबव टी, एस इज प्लेस्ड अबव टी, ठीक है। द बॉक्स लाइटर देन टी इज प्लेस्ड बिलो इट, तो टी हो गया, एस हो गया। हाउ मेनी बॉक्सेस, यू से ऊपर जो है वो 4 बॉक्सेस रखे हुए हैं। देन विच ऑफ द फॉलोइंग बॉक्स इज द हैवीएस्ट, तो एस इज द हैवीएस्ट बॉक्स। व्हाट इज द टोटल वेट ऑफ एस एंड यू, तो 3 4 5 और 5 55 किलोग्राम, ठीक है। इफ द वेट ऑफ द बॉक्स प्लेस्ड सेकंड फ्रॉम द टॉप, व्हाट इज द वेट ऑफ द बॉक्स, ठीक है। एक मिनट अभी और पढ़ लेते हैं। बिलो इट, डब्ल्यू इज 15 किलोग्राम लाइटर देन एस, 15 कम करो, 15 का अब से 5 में 7 बच रहे, और 15 से 1 बचा 17 हो गया। जी इज 4 किलोग्राम लाइटर देन यू, यू से 4 किलो हल्का है,
तो यानी कि ये 19 किलोग्राम का हो जाएगा। ठीक है, तो व्हाट इज द सेकंड फ्रॉम द टॉप, तो 19 किलोग्राम। ठीक है, ये 19 का हो गया। फॉर द फॉलोइंग आर स्मॉल एंड सर्टेन वे, तो जी 19 ऑड हो गया, डब्ल्यू का भी ऑड हो गया और यू का भी ऑड हो गया, एस का इवन हो जाएगा वेट। ठीक है, खत्म। नहीं नहीं नहीं, ओहो, लास्ट क्वेश्चन बचा है, हम लोग बहुत क्लोज हैं। सी एल ओ सी के डब्ल्यू आई एस ई, सी टी ई एफ जी एच आई, एक बन गया आई। ठीक है, एल एम एन ओ पी क्यू आर एस ओ पी क्यू आर एस टी यू, सी डी ई एफ जी एच आई जे के एल, दो, और दो तो मुझे मिल गए, आई एस टी यू बी के डब्ल्यू एक्स, सॉरी, चलो कोई बात नहीं। थोड़ा सा हम जो एक्सप्लेनेशन मोड में नहीं जाते तो मैं ये मतलब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर देता रीजनिंग के। पजल्स अच्छी तरीके की बन गई आराम से, थोड़ी सी दिक्कत हुई इनमें। तो इस बार जो है हमारे 59 क्वेश्चंस जो है वो करेक्ट हुए हैं, दैट्स रियली गुड। बट स्कोर क्योंकि हमारा नेगेटिव जो है वो हो गए हैं, इस वजह से हमारा जो स्कोर है वो डाउन चला गया है। तो पेपर में देखो अभी ना मैं टेस्ट दे रहा हूँ, मैं आपको एक बात और बताता हूँ, टेस्ट दे रहा हूँ तो मैं यहाँ पर मैं थोड़ा सा रिस्क भी ले लेता हूँ। जैसे अगर मुझे लगता है कि कोई क्वेश्चन 80% ठीक है तो मैं उसको थोड़ा सा मार्क करने की कोशिश करता हूँ कि हाँ चलो ठीक हो जाएगा। बट एग्ज़ाम में क्या करूँगा, मैं इनको अवॉइड करूँगा बिल्कुल। तो गलत तो मैं देख ही लूँगा मेरे कौन कौन से हुए हैं। इंग्लिश में मेरे जो है क्वेश्चन गलत हुए हैं बिल्कुल, 6.5 नंबर हमारे इंग्लिश में सोचने से भी कम आए। मैथ्स में ठीक है, रीजनिंग में ठीक है, मतलब ठीक है ओवरऑल 18। यहाँ थोड़ा सा स्कोर जो है बढ़ सकता है। ठीक है, यहाँ ठीक है, अभी कुछ 3 क्वेश्चन यहाँ भी गड़बड़ हो गए। ठीक है, तो अभी इंग्लिश में स्कोर थोड़ा सा डाउन जा रहा है। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको देखते हैं।